आज के इस अंतर में अशोक का शस्त्रत्याग नामक शीर्षक से संबंधित भाग नंबर 3 का विश्लेषण किया जा रहा है। ये वाला जो शीर्षक है इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के संबंधित नान-डिटेल का मैंने एकांकी सुधा से संबंधित पाठ है। मैंने ये पाठ किस भाग से लिया गया है? एकांकी सुधा नामक, जिसको हम अंग्रेजी में नान-डिटेल कहते हैं, इसी से संबंधित पाठ है। ये गद्य संबंधी पाठ होने के कारण इसके लिखने वाले लेखक मैंने ये जो एकांकिकार वंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। पिछले 2 अंतरों में हमने क्या देखा है कि पहले अंतर के अंतर्गत भाग के अंतर्गत इस शीर्षक के लेखक वंशीधर श्रीवास्तव जी का जीवन परिचय के बारे में देखा गया, और दूसरे अंतर में इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेखक इस शीर्षक के संबंधी अर्थ को किस प्रकार से स्पष्ट किया है। मैंने इसका मुख्य पात्रधार जो अशोक सम्राट हैं, अशोक सम्राट का परिचय, और इसी प्रकार इन्हें इसके संबंधी इन्होंने कैसे अपने शस्त्र का त्याग किया है। मैंने अशोक सम्राट ने अपने मगध राज्य के पक्ष से अपने कलिंग राज्य पर किस प्रकार से इसका वध करता है, मैंने युद्ध के अंतर्गत उसका पराजय कराता है। तो ये वाला विषय के बारे में वहाँ पर भाग नंबर 2 के अंतर्गत देखा गया। अब इस भाग के अंतिम वाला पाठ जो है वो भाग नंबर 3, इस भाग के अंतर्गत कवि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अशोक ने अपने शस्त्रों का वेपन का आयुधों का त्याग क्यों किया है, और इसके संबंधी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पाठ के पक्ष से कवि लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये दोनों विषयों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। See here, my dear friends, today we are discussing one of the topic that main title is Ashoka ka Shastratyag, means the sacrificing of Ashoka's weapons, sacrificing the weapons of Ashoka. Here, in this part, the totally 3 parts can divide here. We are totally 4, but it can be collecting only just 3 parts only. So, this part is the 3rd part, and this is the final part. This one, this lesson's final part. So, in previous parts, the 2 parts we are discussed about the first part is author's biography. In that part number 2, we are discussed what is the ambition of the author about the topic of Ashoka, sacrificing of weapons, sacrificing weapons of Ashoka. Next, who are the main character in this topic, and why he changed this his mind of to the attacking the Kalinga kingdom. So that's in previous part we are discussed, but now today we are discussing that same topics with the final part, that means part number 3rd. We are discussing about Ashoka, why the Ashoka Samrat emperor was sacrificing his weapons. Then what, not only that, but what is the moral of this topic, and what is the conclusion of this lesson, we can say and discussing here. So first of all, the Ashoka Kalinga Rajya par में Ashoka emperor was the rule of the Magadha Rajya. He was thought about how to
expand the kingdom. Means he attacked to the near neighbor of the Kalinga Rajya. Mean how many years it was the war with the Kalinga? Here means the 3 to 4 years. And continuously he can war with Kalinga. But finally that Kalinga is not adapting in his adapting his Magadha Rajya. That why? Because the Kalinga in the middle of that the war, the Kalinga's the emperor was killed by the Ashoka, but that kingdom was not here handed over to that Magadha Raja, means Ashoka, because in that the kingdoms the one of the prince that means called as the daughter of the emperor, means Kalinga Raja's the emperor the daughter. So she was very brave and she attacked with defied the war with the Magadha Rajya. When at the end of the war, she is not handed over to her kingdom to the Magadha Rajya. And as per the braveness of that the woman and that Ashoka was decided to and preach to that I can't be war again to any other kingdoms. And not only that, immediately he was thrown the sword of his sword in that battle. Okay, battleground. So, and here taken one of the places is Gautama Buddha's Buddhism, and that he followed up to the still his life period. So, what happens there? That he can implement as per his Buddha's pledge, and he maintain the same way up to still his death time. Okay, mean the kingdom was the Magadha Raj was the ruled by the Ashoka is very peaceful, and there is no offense of any other kings. Because he was overhotted, he ruled the Magadha Rajya, and he saved the people of Magadha, and they are very satisfied the ruling by the Ashoka. Okay, so they are all the people of the kingdom Magadha that accepting that Buddhism, and they followed that conditions, rules and regulations and conditions too, right? And they up to still they are fully satisfied with the ruling of Ashoka, the emperor. So, what conclusion of here in this lesson means, if you are love to others and you are pity to others, is the human conditions. Mean those people are human beings are having the love opportunity and the peacefulness in their activities, so they can get the success in their life. And that is the need of the human that society. The two things here mentioned. That's one of them is the love to others, and your in pettiness too.
And nextly, is महान आवश्यक शस्त्र त्याग. Mean here that one incident is there. Mean that great emperor Ashoka was is a good emperor, but he decided to no war to others kingdoms, because here is taken the one Buddhism, and he is sacrificingness of his future life. Means here satisfaction, means sacrificing by the Ashoka is not important, but in that Kalinga's kingdom, that the daughter of the Kalinga here emperor, she also here having the greatness, and here is the braveness of the princess of Kalinga. Okay, when here is mentioned, it is very clear that if you are the woman, but is not you are not defeat the other that men, means it can also is a powerful and that than the men. Isn't she can be, the woman can be defeated and do the each and every sacrificing, and not only the sacrification, but you can do that every work and the brave with braveness. So this is the totally here mentioned the what is the conclusion of this topic, and the why the sacrification of the weapons by the Ashoka. Okay, right. I hope you can be understood and well, and what is the moral of this topic. So छात्रगण, इस अंतर में यहाँ पर लेखक वंशीधर श्रीवास्तव जी से क्या कहा जा रहा है, मीन्स इस विषय के इस भाग के अंतर्गत अशोक ने अपने शस्त्रों का त्याग क्यों किया है, मीन क्यों करना पड़ा है, इस विषय के बारे में इस भाग के अंतर्गत चर्चा की जाएगी. इसमें जैसा देखा गया, कलिंग राज्य पर मगध राज्य के राजा अशोक सम्राट ने 4 वर्षों तक लगातार युद्ध करने लगे. तब ऐसे संदर्भ में के युद्ध के अंतर्गत राजा कलिंग के राजा का वध किया गया, संहरण किया गया अशोक सम्राट से. फिर भी वह राज्य वाले, मैंने उसकी जो बिटिया थी वो राजकुमारी जो थी, वो राजकुमारी ने अपने कलिंग राज्य के अपने पिता के मरने के मृत्यु के राजा के मृत्यु के बाद भी वह क्या है अपने राज्य को, मैंने इन्हें शत्रु राज्य मगध राज्य को वह इसको अपने अधीन करने नहीं दिया. और वह उसने अपने धैर्यशीलता के कारण क्या है अपनी नारियों को, सेना को जोड़कर डटकर मगध राज्य के सैनिकों से युद्ध किया. इस रानी के स्त्रियों के युद्ध के संबंधी दृश्य को देखकर अशोक सम्राट ने अपने निश्चयों को, अपने गुणों को बदलकर एक शपथ लेते हैं. वो क्या और कहते हैं कि निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि शपथ के रूप में क्या कहते हैं कि इसी युद्ध के अंतर्गत, युद्ध भूमि के अंतर्गत अब मैं अपना यानी कि जो स्वाड, मैंने अपनी जो तलवार जो थी वो पवित्र तलवार को अपने यहाँ युद्ध भूमि पर फेंक कर कहते हैं अब मैं किसी से और किसी राज्य से युद्ध नहीं करूंगा, और विशेष रूप से एक नारी के साथ ये कभी युद्ध नहीं करूंगा. और इसी संबंधी उन्होंने गौतम बुद्ध के नियमों का शपथ करते हैं, जिससे कभी किसी की
हानि नहीं करेंगे और कभी अनेक किसी शत्रु सेना से युद्ध नहीं करेंगे और अपने राज्य के लिए जब तक अपने शरीर में प्राण होते हैं तब तक वह अपने राज्य के सेना को और अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे और इस प्रकार अहिंसा के प्रति, प्रेम के प्रति और इसी प्रकार एक दूसरे के संबंधी को जोड़ने के लिए इन्होंने अपने प्राण को अर्पण करने के लिए वो सिद्ध रहेंगे। और बताया गया युद्ध चलता रहा। कलिंग के युद्ध के अंत में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ही चेंज हिज डायरेक्शंस, ही चेंज हिज मूड, मीन्स इन द एंड ऑफ द कलिंगस वार ऐसे होता है। और वे अशोक सम्राट यानी आगे से कभी किसी से भी युद्ध न करने का निश्चय यानी कि शपथ करते हैं। कहाँ पर? युद्ध भूमि में वो इससे अपने मन का परिवर्तन होने मात्र से वो शपथ करते हैं अब कभी किसी से, किस राज्य से युद्ध नहीं करेंगे। He decided to that he can't be war with other kingdoms। उसके बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को, बुद्ध धर्म में से बौद्ध धर्म को युद्ध का धर्म को अपना लिया है, मीन स्वीकार किया है। इस समय बुद्ध भिक्षु ने उन्हें प्रतिज्ञा दिलाई कि जब इस प्रकार से जब इन्होंने ही चेंज द ही कैन एक्सेप्ट द बुद्धिज्म दैट रूल दैट एट द टाइम ही प्लेज्ड दैट आई कांट बी व्हाट वन, जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे व्हाट मे बी व्हाट नेवर आई कैन बी या वार विथ द अदर्स, हमेशा अहिंसा का पालन करेंगे। मीन ऑलवेज ही मेंटेन दैट नॉन वायलेंस। और यहाँ पर प्रजा की भलाई करेंगे। नॉट ओनली दैट he can pledge the one more the words that is I can be save the my people, means that people those are the believe are under the his kingdom। सभी प्राणियों को सुख शांति के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अंतिम में वो कहते हैं अपने प्राणियों को, सभी प्राणी को, नॉट ओनली दैट ह्यूमन बीइंग्स द ऑल क्रीचर्स दोज आर लिविंग इन दिस इन हिज किंगडम कैन बी सेव एंड द सर्व देम। तो इस प्रकार से अशोक ने गौतम बुद्ध के धर्म के स्वीकार करने मात्र से इन्होंने 4 शपथ ली हैं। एक जो होता है कभी किसी से युद्ध नहीं करेंगे, आई कांट बी द वार विथ अदर्स। अनदर थिंग इज वो अहिंसा का पालन करेंगे। ही कैन मेंटेन दैट वायलेंस द नॉन वायलेंस। दूसरा प्रजा की भलाई करेंगे। द थर्ड वन इज कैन बी सर्व टू द पीपल दैट गुड एज ए गुड ऑफेंस। प्रजा की भलाई मीन गुड थिंग्स, ऑलवेज ही थिंक अबाउट द पीपल द गुड थिंग्स ऑफ द पीपल। सभी प्राणियों को सुख शांति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ही ऑलवेज डू दैट, ही ट्राई टू दैट गिव द पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस टू द people each and every creature, not only that human being, each and every creature too। नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन, इससे हमें क्या विशेषता मिलती है? प्रेम और करुणा। इट मीन्स नॉट ओनली द पीसनेस, हियर इज द लव अफेक्शनिटी। वो दोनों में मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। इज दिस टू आर द वेरी एसेंशियल टू द ह्यूमन बीइंग। व्हाट आर द टू थिंग्स? हियर इज द टू कैरेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज द लव, द अनदर वन इज करुणा, मीन्स पीसफुलनेस के आवश्यक गुण हैं। मीन्स नीड फॉर एन एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बोथ आर द टू। व्हाट आर दे? द वन इज द लव अफेक्शनिटी एंड अनदर वन इज दैट द पीसफुलनेस।
नहीं, इसमें महान अशोक के शस्त्र त्याग द्वारा जहां अहिंसा का महत्व बताया गया, तो इसी प्रकार हियर इन दिस पार्ट दैट लेसन the sacrification of the Ashoka, the weapons of Ashoka is not only that another way, another message, the moral is given in this part. What are this? What is this means? दूसरी ओर कलिंग की राजकुमारी means princess of the Kalinga, and that's the lady, the daughter of the Kalinga's king. Okay, shairya और साहस को means the braveness of that girl, the princess, and the braveness of that not only the attacking of that prince and braveness of the prince, it can be identified here. नारी सशक्तिकरण के प्रतीक हैं. These two are the mentioned by the princess of the Kalinga in this war, and is the indication of the human, that woman, the characters. The woman is not the bond of the men, but she can defeat that war with the men, and she is not the bound to the men only. She can be level of equal of the men. Means this is the moral of this part, the sacrification of the weapon, sacrification weapons of the Ashoka. Okay, this is the moral of. यानी इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत अंतिम वाला पार्ट भाग के इसमें हमें ये नीति मिलती है कि अशोक ने अपने शस्त्र को कैसे त्याग करना जैसे है, उसी प्रकार दूसरा जो होता है कलिंग की राजकुमारी यानी जो होती हैं वो अपने शौर्य को, अपने जोश को किस प्रकार से बताया है, और उसका साहस के संबंधी ये दोनों गुण जो होते हैं, एक साहस, दूसरा शौर्य, इस प्रकार एक नारी के सशक्तिकरण के प्रतीक है. इस indicators and indication of this topic is the two things. The one is the woman's the braveness, another is the woman's the character. Means what can be is not a bond of the man, but it can be equal, it can defeat the like the men. ये प्रतीक है, इस प्रकार से है. इस प्रकार से अशोक का शस्त्रता के संबंधी जो विषय का बताया गया है, इस विषय को न केवल सुनना पढ़ना है, बल्कि अपने अपने निजी जीवन के अंतर्गत अपने परिवर्तन में क्या है परिवर्तन लाने का, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. यू आर नॉट ओनली हियर आर द सी रीड दिस लेसन, बट यू कैन बी आइडेंटिफाइड द मॉरल ऑफ दिस lesson, and you not only that keep your mind, but you implement your life period too. Okay, thank you.